Welcome back, student. After the completion of first chapter, democracy, what is democracy, why democracy, some questions on the basis of our discussions and according to their examinations, try to solve this question. First question is, the word democracy comes from the Greek word. Which Greek word? Democratia, democratica, demos and kratica. You know that term word is democracia. In Greek, demos means people and kracia means rule. That is option B, democracia. Okay. Second one, which is the most prevalent form of government? According to their option, democracy, dictatorship, monarchy and communist, you can say that democracy. Democracy enhances the dignity of the citizen, nation, ministers. Always citizen. Some 3 marks question is there. How democracy allows us to correct its own mistake? How democracy allow us to correct its own mistake? In democracy, there is a space for public decision, public discussion on government, on the ruler, minister, and then a room for the correction. अगर कोई विधेयक है, कोई बिल है, पारित करना है, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिबेट और डिस्कशन आप देखते हैं. तो डिबेट और डिस्कशन के दौरान अगर कोई करेक्शन या इनकरेक्ट चीज आती है सामने, तो उसको दूर करने का लोग कोशिश करते हैं. अगर द रूलर हैव टू चेंज देयर डिसीजंस और द रूलर्स कैन बी चेंज्ड, अगर वो जो गलती है, जो करेक्ट मिस्टेक है, अगर उसको वो चेंज कर देते हैं तो ठीक, नहीं तो जनता जो है वो अगले साल उस लीडर को चेंज कर देते हैं. इसलिए डेमोक्रेसी में क्या है, डिबेट और डिस्कशन के द्वारा कोई मिस्टेक अगर सामने आता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को भी आप देख सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन बनने की जो प्रक्रिया थी उसमें आगे नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वही है, हम लोग पढ़ेंगे. व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर सेलेक्ट देयर in which peoples are select their rulers. Give some example. India, USA, these are best example of democracy. How democracy can enhance the dignity of the citizen? The dignity of the citizen, you can say that in democracy only one, in democracy you can say that democracy is based on the principle of political equality. Means political equality होगा. जो हमारे द्वारा लीडर चुने जाएंगे, कोई भी आप लीडर के लिए जो पैमाना है, कोई भी आदमी खड़ा हो सकता है, तो पॉलिटिकल इक्वालिटी है. ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा होगा. ऑन रिकॉग्निशन द पुअरेस्ट एंड द least educated has been the same status as the rich and educated. देखिए, कोई बिल्कुल ही पुअरेस्ट आदमी है, उसको भी वही मानता या समानता मिलता है जो समाज में बड़े से बड़े रिच आदमी को. वो आपने पढ़ा होगा, 1 वोट 1 वैल्यू, इस तरह का उदाहरण. तो इससे क्या होता है कि इन डिग्निटी और क्या होता है कि आदमी को रूलर जो है वो हमेशा, या डेमोक्रेसी जो है हमेशा, डेमोक्रेसी का निर्माण होता है, एक ट्रू डेमोक्रेसी का निर्माण होता है लीडर से ना होकर के पीपुल से होता है, जनता के द्वारा होता है, सिटीजन के द्वारा होता है. नेक्स्ट, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी के ब्रॉडर मीनिंग में भी हमने देखा था कि हमें ऐसा डेमोक्रेसी होना चाहिए जिसमें सभी को भोजन मिले, कोई भी भूखे नहीं, सबको इक्वल राइट मिले, सबके वोट का वैल्यू बराबर हो, सभी के लिए एजुकेशन की व्यवस्था हो, पुअर और रिच की जो भावना है वो एक समान रहे. इस तरह की बातें हमने देखा था.
elections are held to choose the representative, and native people or citizens allowed to the participate in election. Democracy is also principle that can be applied to the. That's enough. Some long question, 5 marks question are there. State the features of democracy. You can say that in democracy, decision making power is always in citizens. Free and fair election. Each adult citizen must have one vote, and each vote must have one value. Democratic government rule within limits set by the constitutional law and citizen right. Democracy provides a method to deal with differences and conflict that enhance the dignity of the citizen. These are the features of democracy. In which countries even today there is denial of equal right to vote. देखिए, इसमें अगर हम उदाहरण करें तो सऊदी अरेबिया, फिजी और एस्टोनिया वाला उदाहरण जो था उसी को हम लोग चर्चा कर लेंगे। हालांकि सऊदी अरेबिया में बाद में ये लागू हो गया, तो आप एस्टोनिया और फिजी का उदाहरण दे सकते हैं, जहां पे इंडिजीनियस फिजी का आएगा और इंडियन फिजी का उदाहरण आएगा। और रशियन माइनॉरिटी के होने के कारण उनके वोट का वैल्यू नहीं था, ये आप इसमें चर्चा कीजिए। In a democracy, no one is the permanent winner or loser. Why do we say that? देखिए, डेमोक्रेसी में कोई भी परमानेंट लूजर और विनर नहीं होता है। इलेक्शन जो है अगर जनता के हिसाब से काम होता है तो ठीक है, वरना अगले बार जो है वो चुनाव में। इसका एक उदाहरण मैंने आपको यहां से भी दिया हुआ था, मुझे याद आ रहा है कि कनेडियन लोग जो थे, ऐसा कुछ उदाहरण मैं ये कनेडियन लोग जो थे इसके हिसाब से भी दिया हुआ था। और नेक्स्ट लास्ट है कि आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, ये हमेशा परमानेंट एवरग्रीन क्वेश्चन है। 2 और 3 पॉइंट्स आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, या फिर 3 पॉइंट्स आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। इफ बोथ आर सेम इन वन क्वेश्चन, देन 2 आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी and 2 आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। Okay, this type of questions are there, just a practice. You can try to solve it. After more and more question you solve, and in next video we continue our second chapter.